1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 6 चैप्टर 1 वर्स से 29 वर्स, लेविटिकस 24 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 1 वचन से 29 वचन, लेव्य व्यवस्था 24 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों के अधीन लाकर पिता परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे जीवन को बदल रहे हो। हमारे आत्मा प्राण शरीर में पिता परमेश्वर तो सच्चाई को ऊंचा कर रहा है और झूठ को हटा रहा है। हमारे बल, हमारा मजबूती तेरे वचन की सच्चाई के बल पर, और पिता परमेश्वर तो अपनी जड़ हम में मजबूत कर रहा है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। जो तुझ पर भरोसा करता है, जो तुझ पर टेक लेता है, वह कभी डगमगाएगा नहीं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। तेरे समान इस दुनिया में कोई नहीं है परमेश्वर, इस पृथ्वी के ऊपर और आकाश मंडल में तेरे समान और कोई परमेश्वर नहीं। सारे यूनिवर्स के अंदर तेरे समान कोई परमेश्वर नहीं है पिता। इसके लिए हम विनती करते हैं, तेरे वचन हम अच्छे से समझने दीजिए और इस वचन के अधीन रख के खुदा हम तेरे राज्य के काम को अच्छे भले तरह से कर पाए, ऐसा अभिषेक कीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और की कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। मार्क 6 चैप्टर 1 वर्स से 29 वर्स। Christ condemned by his own countrymen, John the Baptist, death, the miracle of the loaves and fishes, etc. First verse say, and he went out from thence and came into his own country, and his disciples follow him. And when the Sabbath day was come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, from whence hath this man these things? And what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph, and of Judah and Simon? And are not his sisters here with us? And they were offended at him. But Jesus said unto them, a prophet is not without honor, but in his own country, and among his own kin, and in his own house. And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them. And he marveled because of their unbelief. And he went round about the villages teaching. And he called unto him the 12, and began to send them forth by two and two, and gave them power over unclean spirits, and commanded them that they should take nothing for their journey, save a staff only, no scrip, no bread, no money in their purse, but be shod with sandals, and not put on two coats. And he said unto them, in what place soever ye enter into an house, there abide till ye depart from that place. And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, it shall be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. And they went out and preached that men should repent. And they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them. And King Herod heard of him, for his name was spread abroad. And he said that John the Baptist was risen from the dead, and therefore mighty works do shew forth themselves in him. Others said that it is Elias, and others said that it is a prophet, or as one of the prophets. But when Herod heard thereof, he said, it is John,
whom I beheaded, he is risen from the dead. For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife, for he had married her. For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife. Therefore Herodias had a quarrel against him, and would have killed him, but she could not. For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, and observed him. And when he heard him, he did many things, and heard him gladly. And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee. And when the daughter of the said Herodias came in and danced and pleased Herod and them that sat with him, the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee. And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee unto the half of my kingdom. And she went forth and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptist. And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist. And the king was exceeding sorry, yet for his oath's sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her. And immediately the king sent an executioner, and commanded his head to be brought. And he went and beheaded him in the prison, and brought his head in a charger, and gave it to the damsel, and the damsel gave it to her mother. And when his disciples heard of it, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb. हम हिंदी में यही वचन पढ़ेंगे, मरकुस यही अध्याय पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 1 वचन से 29 वचन तक पढ़ेंगे। नासरत में यीशु का अनादर, 6 अध्याय 1 वचन से 29 वचन तक। पहले वचन से पढ़ेंगे। वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया, और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सप्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहिनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। 12 प्रेरितों का भेजा जाना। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा, और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, न तो रोटी, न झोली, न बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते न पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो, तो जब तक वहां से विदा न हो, तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो, कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला,
और बहुत से बीमारों पर तेल मल कर उन्हें चंगा किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या, 14 वचन से आगे। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा, यह एलिया है, परंतु कुछ अन्य ने कहा, भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले। परंतु ऐसा न हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगू? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा। अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही की आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रख कर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये वचनों के रहस्य और भेद हमको ठीक समझने के लिए हम विनती करते हैं। हमें इन वचनों में फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।